So decision making under conditions of uncertainty. So this condition occurs when the decision maker have knowledge about the future events. He knows what are the options that may happen or states of nature. And second, the decision maker doesn't have the probabilities of occurrences of those events. That we know that the demand may occur, might be high, might be low, might be moderate, might be nil. Okay, but we know among these four options, one will happen. Now, which one will happen, that we don't know. So, to find that out, we have few options. We have few criteria. Now, under this decision making of condition of uncertainty, there are several number of criteria. The first one, the first criteria is max criteria. It has another name, criteria of optimism. Okay, now what happens here? The decision maker here is optimistic. He thinks so everything will go on best. So he is very optimistic, everything will go on best and everything will go on according to his knowledge. So everything will be absolutely fine. So in such case, if I work with the problem of the previous class where we have drawn this figure, in this case, if I draw the maximax criteria, if I work on this payoff matrix, this was a payoff matrix which was given. This was given payoff matrix. Now, if we continue with this example, let us understand the criteria. Then I will draw the criteria again here. So we will draw like this. These are our alternatives and these are our states of nature. Now the demand is high, demand is moderate, demand is low, and demand is nil. Okay. Alternative was expand the plant. Alternative 2 was construct a new plant. Alternative 3 was subcontract to other companies. In such case, the combination was like this: 50,000, this was 70,000,
this was 30,000. Here this is 25,000. Here 30,000. Here 15,000. This was minus 25,000. This was 40,000. This is minus 1,000. Now in nil case, it was minus 45,000, minus 80,000, and minus 10,000. Okay, this was the given problem. Now here, if the decision maker follows the maximax criteria or the criteria of optimism, then he finds out if he expands the plant, the maximum profit that can be found out is the maximum of this row, this maximum of this row. If he takes expand criteria, this expand option, expand alternatives, then the maximum of this row is 50,000. Okay, so under expand alternative, the maximum profit he can make when the demand is high. He is optimistic, so he finds out maximum 50,000 profits can be earned. So here we will collect max of rows. Okay, so if he construct a new plant, the maximum profit he can get from this row is 70,000. This one. And if he gives subcontract to other companies, then the maximum profit he can get 30,000. So we will write them out. Now, looking at these three digits, he is, the decision maker is optimistic about everything goes right. And in such case, he chooses the maximum of these three, which is 70,000. So now, so our answer will be, if the decision maker chooses the maximax criteria or the criteria of optimism, then the decision maker decides to construct a new plant, because this construct option giving is the highest profit. So now the decision maker decides to construct a new plant by following the maximax or optimism criteria. Okay, if there is any question, guys, please ask me now, or otherwise we will move to the next criteria. Any questions? লো এর জায়গা মাইনাস গুলো কেন আসছে? লো আর এনএলটা কি অ্যাকচুয়ালি? Were you present in the last class? Last. That is the problem. Yes sir, present. If But, you let me give you your answer. If this was a scenario, there is a decision maker of a plant. Now there are four different status. Okay, four different alternatives, three different alternatives. These are the alternatives. Among these alternatives, the decision maker can choose one option, one alternative. Okay, he can expand his plant, he can construct a new plant, he can give subcontract to other companies. Now these are the future events that may occur. Either the demand will be high, or the demand will be moderate, or the demand will be low, or the demand will be nil. Now if there is no demand, but you are expensing money to expand your plant, that will be always loss. That's why these are negative. Even if the demand is low, you are expanding your plant, you will face a loss. If there is high demand and you construct a new plant, in such case you will get profit. That's why it is maximum. Okay, now these negative things are pointing out as losses. Any more questions?
Okay, so let us continue to our next question. Next criteria, which is called Maximin criteria, or criteria of pessimism. This is also called Wald criteria. Okay. Under this case, we'll draw again the table. It is required. Alternatives are along rows and states of nature along the columns. 4 cases: high demand, moderate demand, low demand, nil demand. Okay. Our alternatives: expand, construct, subcontract. 50,000, 70,000, just like before. 30,000, 25,000, 30,000, 15,000, minus 25, minus 40, minus 4,000. Sorry, this was minus 1,000. Okay, in case of this, it was minus 45,000. This is minus 80,000. This is minus 10,000. Now here in this case, our decision maker choosing the Maximin criteria or the criteria of pessimism. Here he thinks everything will go bad, nothing will work correctly. So in such case, he finds out the minimum of the rows. Okay, so we'll take out the minimum of rows. So here the minimum is minus 45,000. Here it will be 80,000. See, the minimum is 80,000. Here the minimum is minus 45,000. Here the minimum is minus 10,000. Now the criteria is Maximin. That means maximum of minimum. So these are the minimums: minus 45, minus 80, minus 10. Now here the maximum of the minimums are these minus 10,000. Okay, so that means if anyone chooses, the decision maker chooses this Maximin criteria, then the decision maker will decide to give subcontract, because minus 10,000 is associated with subcontract. So that's why the decision maker will decide to give subcontract to other company by following Maximin criteria. Okay, any questions here? Otherwise we will forward to the next criteria. No questions. Okay, fine, let's go on. Hello, sir. Yes, bolo. Sir, in the Maximin, sir, we consider minus 10,000. Why, sir? Why not, sir, minus 80,000? Because this is the Maximin criteria means, says Maximin maximum, criteria. minimum. So maximum of minimum will be chosen. This is the criteria. We cannot change it. This is the system.
there are different type of criteria. Among the criteria, we have to choose particular one criteria. We cannot change the criteria. If we change the criteria, that will be your own criteria, the decision maker's own criteria. That is special case, and that is not we will discuss. When you become a decision maker, then you will decide which criteria you have to check. In the problem, when it comes in the exam, the criteria will be given, and according to that particular criteria, you have to find out which decision alternative the decision maker will choose. Okay. 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 सर उसको तो लॉस होगा ना. Please again. सर वो -10,000 चूज करने से तो उसको लॉस होगा ना. हाँ, तो वो लॉस लॉस होगा, क्यों सहेगा? लॉस होगा, लेकिन ये क्राइटेरिया क्या बोल रही है? क्राइटेरिया बोल रहे हैं Minimum क्राइटेरिया loss. पेसिमिज्म. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो डिसीजन मेकर है वो मतलब है, वो सोच रहा है कि कुछ ठीक नहीं Minimum है. loss. Yes. तो इफ ऐसे कोई डिसीजन मेकर होगा तो वो ऐसे सोचेगा कि इसमें कम हमारा लॉस हो रहा है, इसीलिए ये चूज करेगा. ये क्राइटेरिया ही वैसा है, Right. Right. मिनिमाइज द लॉस. ऐसा नहीं है कि लॉस ही होगा. देखो, अगर डिमांड नील हो गया तो ओनली लॉस होगा, लेकिन अगर हाई डिमांड रहा और मॉडरेट डिमांड रहा तो लॉस नहीं होगा. ये क्राइटेरिया ऐसे बना हुआ है कि डिसीजन मेकर बहुत पेसिमिस्टिक होगा, मतलब वो सोच रहा है कि सब कुछ गलत हो जाएगा तो ये होगा, उसके हिसाब से वो चल रहा है. तो ये अगर क्राइटेरिया ऑफ पेसिमिज्म को ही लेगा तो उसका लॉस मिनिमम होगा. जब कोई कंपनी का सामने ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे कोई कंपनी का स्ट्राइक होने वाला है, ऐसे कुछ मतलब प्रॉब्लम होने वाला है, लॉकडाउन होने वाला है, ऐसे सिचुएशन में द कंपनी विल डिसाइड with this particular criteria of pessimism. नॉर्मली जब सब ठीक रहता है तब तो कोई कंपनी मैक्सिमैक्स क्राइटेरिया लेके ही चलता है, लेकिन अगर कुछ टाइम खराब चलेगा कंपनी का तो वो क्या सोचेगा, हम ऐसे क्राइटेरिया लेंगे जिसमें प्रॉफिट होना हो, अगर लॉस होगा तो वो मिनिमम हो. आया समझ में? Any more questions on this criteria? Also. Okay, so हम नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं. ये है हमारा थर्ड क्राइटेरिया, जिसको हम बोलते हैं क्राइटेरिया मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. और इसको हम कहते हैं सैवेज क्राइटेरिया. सेम चीज है. वही सेम, पहले हम लोग टेबल बना लेंगे. expand, construct, सब कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिग्रेट का कैलकुलेशन करेंगे. रिग्रेट का कैलकुलेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग है. हम फिर से ये टेबल बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. इसी टेबल से हम दिखाते हैं. अभी भी कौन से बंदे आ रहे हैं?
ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है ना ठीक से। ये हमारा जो टेबल है, बस इसको छोड़ के इतना दूर तक हमारा टेबल है। ठीक है, इसको हम किसी कुछ चीज से ढक देते हैं। देखो, ये टेबल समझ में आ रहा है सबका? अब इसमें देखो, यस सर। ओके, इसमें देखो ये जो एक्सपैंड ऑप्शन है, ये एक ऑल्टरनेटिव है। अगर ये डिमांड है, अगर हाई है, तो हमको लगता है मतलब प्रॉफिट होता है, पे ऑफ होता है 50,000 का, मॉडरेट होता है तो 25,000 का, लो होता है तो -25,000 का, नील होता है तो -45,000 का। ये हम लोग समझ चुके हैं। अभी हमको नहीं पता कि कौन सी इवेंट हो रहा है, हाई, मॉडरेट, लो, नील, कौन सी इवेंट घट रहा है, ये हमको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम रिग्रेड बनाएंगे। मानो कि इवेंट हाई हो गया, ठीक है, इवेंट हाई हो गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इवेंट हाई हो गया, इसके ऊपर हमारा कोई हाथ नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि इवेंट हाई हो गया, इवेंट हाई हो गया और हमने एक्सपेंड चूज किए। ठीक है, इवेंट हाई हो चुका है, हमने एक्सपेंड चूज किए, तो हमारा प्रॉफिट हुआ 50,000 का। लेकिन हमारा स्कोप प्रॉफिट करने का कितना था? स्कोप था 70,000 प्रॉफिट करने का, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्ट करने से ये 70,000 सबसे ज्यादा हमारा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने एक्सपैंड को सिलेक्ट किए, 50,000 सिलेक्ट किए, मतलब प्रॉफिट हुआ 50,000 का, जहां पे 70,000 प्रॉफिट बन सकता था। तो ये जो प्रॉफिट हमने मिस किए, उसको कहते हैं रिग्रेट। ठीक है, तो अगर हम एक्सपेंड चूज करेंगे हाई डिमांड के अंदर, तो हमारा रिग्रेट होगा कितना? 20,000 का। ठीक है, तो हम इस जगह पे, इस जगह पे हमने 20,000 लिखे हैं। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. सबका समझ में आया? Sir, explain it once. रिपीट। Yes, sir. ओके, ओके, देखो ठीक से, देखो, फोकस करो सब लोग मेरे साथ साथ। ये तुम लोग का प्रॉब्लम था, ठीक है, ये पे ऑफ मैट्रिक्स था। पे ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, हम कोई पर्टिकुलर इवेंट को पकड़ेंगे। पिछले बार हमने पकड़ा था हाई इवेंट को, अभी हम बात करेंगे से मॉडरेट को। सपोज ये मॉडरेट इवेंट हुआ है, ठीक है, मॉडरेट इवेंट हो गया है, इवेंट हमारा जो हुआ है वो मॉडरेट हुआ है। अभी देखो, हमने एक्सपेंड ऑप्शन को चूज किए, ठीक है, एक्सपेंड ऑप्शन चूज किया और डिमांड हमारा मॉडरेट रहा, तो हमारा पे ऑफ होगा 25,000 का। अगर हम लोग कॉन्स्ट्रक्ट करते 30,000 का, तो हमारा प्रॉफिट होता, मतलब हम कॉन्स्ट्रक्ट करते थे तो हम लोग का प्रॉफिट होता 30,000 का, लेकिन हमने एक्सपेंड किए तो प्रॉफिट हुआ 25,000 का, तो हमारा रिग्रेट कितना हुआ? 5,000. 5,000 का। तो ये रिग्रेट हमारा बनता है 5,000 का। तो हम क्या करेंगे, ये जो हम फिगर बना रहे थे, इसमें मॉडरेट हुआ है, तो इसमें हम एक्सपेंड करने से रिग्रेट 5,000 का लिखेंगे। 5,000. ठीक है, समझ में है अभी? ऐसे कर करके ये Sir, फिगर मैं तुम्हारे सामने रख देता हूँ, बताओ, স্যার बोलो। স্যার এই রিগ্রেটটা কি মানে সবসময় प्लीज কনস্ট্রাক্ট बी দিয়ে लाउडर, प्लीज এক্সপ্যান্ডকে बी लाउडर। মাইনাস করব? স্যার রিগ্রেটটা কি সবসময় কনস্ট্রাক্ট দিয়ে এক্সপ্যান্ডকে মাইনাস করেই হবে, না আরো সাব কন্ট্রাক্ট দিয়েও হতে পারে? मैक्सिमम को ले रहे हो भाई. You have to find the maximum and delete the particular uh, uh, the particular
the position here. So you have to find the maximum. ये है 70,000 और 70,000 से अगर एक्सपेंड करेंगे तो हमारा नुकसान, हमारा जो रिग्रेट है वो कितना 20,000 का, क्योंकि ये 70,000 से 50,000 माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। तो अगर हमने कॉन्स्ट्रक्ट ही कर लिए तो हमारा प्रॉफिट डिमांड हाई में मैक्सिमम हो गया, तो हमारा कुछ रिग्रेट नहीं, जीरो रिग्रेट। जीरो रिग्रेट। तो हम ये कॉन्स्ट्रक्ट में जीरो लिखेंगे। अगर हम सब कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो हमारा रिग्रेट कितना 40 40,000 का। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सब कॉन्ट्रैक्ट में रिग्रेट 40,000 का। ठीक है, इसको ऐसे बताओ, इसमें मॉडरेट डिमांड होगा और एक्सपेंड करेंगे तो रिग्रेट कितना 5000 5,000 का। वेरी गुड। कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे तो रिग्रेट कितना जीरो। जीरो। वेरी गुड। अगर हम लोग सब कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो ये इसमें रिग्रेट कितना होगा मॉडरेट डिमांड पे 15,000. 15,000। कैसे हुआ 30 माइनस 15, मैक्सिमम माइनस उस पर्टिकुलर जगह में जो है उसको क्या बोलते हैं उसको, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब लो डिमांड में चलते हैं। ये डिमांड अगर लो हुआ और हमने एक्सपेंड चूज किए, अब बताओ हमारा रिग्रेट कितना 24 सर। 24,000। वेरी गुड, वेरी गुड। 24,000 सही है, 24,000 का। देखो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है -1,000, -1,000 से हम माइनस करेंगे इसको तो होता है 24,000। इसमें कितना होगा कॉन्स्ट्रक्ट में 39,000। वेरी गुड। और इसमें 39,000. सब कॉन्ट्रैक्ट में जीरो। जीरो, जीरो। वेरी गुड। और नील में बताओ, नील में, नील और एक्सपेंड में 35,000. 3570 35,000 3570 3570 35,000. 3570। हाँ ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो ठीक है, तो अभी देखो हमारा ये टेबल बना है, हमने लिख लिए थे, जो लोग जो बोल रहे थे हमने लिख, तो ये हमको मिला है। अगर ये हमको मिलेगा तो ये हमारा रिग्रेट टेबल है। ठीक है, इसको हम क्या क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिग्रेट टेबल। ठीक है, ये पे ऑफ टेबल नहीं रहा, ये रहा रिग्रेट टेबल। इसको याद रखना, इसको ऊपर में ये होगा रिग्रेट टेबल। और इसमें से हमारा टारगेट ये होगा कि रिग्रेट सबसे कम हो। मिनिमम ऑफ रोज ले लेंगे सर। नहीं, पहले क्या होगा, ये देखो, ये जो क्राइटेरिया है, सॉरी, अरे यार एक मिनट, गिर गया मेरा फोन। ये रिग्रेट क्राइटेरिया कहाँ लिखे थे, देखो इसमें देखो, ये क्या रिग्रेट मैंने लिखा है, मिनिमैक्स रिग्रेट। मिनिमैक्स रिग्रेट मतलब हमको सबसे पहले ये जो रोज है, ये रोज में हम लोग मैक्सिमम निकालेंगे। मैक्सिमम रिग्रेट कौन सी है वो निकालेंगे। तो मैक्सिमम रिग्रेट अगर हम एक्सपेंड चूज करेंगे, मैक्सिमम रिग्रेट होता है ये 35,000 का। ये होता है हमारा मैक्स ऑफ रोज, मिनिमैक्स है, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम। तो हमारा मैक्सिमम ऑफ रोज 35,000, ये होगा 70,000 और ये होगा हमारा 40,000। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमैक्स रिग्रेट मतलब हम लोग क्या अभी चूज करेंगे, इसमें से मिनिमम चूज करेंगे। तो मिनिमम कौन सी होगी 35,000। तो इस क्राइटेरिया के अनुसार, मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, द डिसीजन मेकर एक्सपेंड will select, very good, expand option under minimax
रिग्रेट क्राइटेरिया। ठीक है ना, समझ में आया सबको? इसको दोबारा बोलना है क्या? लास्ट वाला और एक बार बोले। लास्ट टर्म देखो, ये जो है ये मिनिमैक्स रिग्रेट है। मिनिमैक्स मतलब मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम ऑफ मैक्सिमम। ओके, सो व्हेन वी फाइंड आउट द रिग्रेट टेबल, देन हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सपेंड ऑप्शन के अंडर में कितना मैक्सिमम रिग्रेट होगा वो निकालेंगे। मैक्सिमम हमने लिख लिया, मैक्सिमम ऑफ रोज में मैक्सिमम लिख लिया। अब जो क्राइटेरिया है मिनिमम ऑफ मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम के अंदर मिनिमम कौन सी है? 35,000। तो इसी के कारण हम लोग ये जो रेस्पेक्टिव डिसीजन है एक्सपैंड, इसलिए हमने ये एक्सपैंड को चूज किया। तो इसीलिए द डिसीजन मेकर विल सिलेक्ट द एक्सपैंड ऑप्शन, एक्सपैंड द करंट प्लांट under minimax regret criteria. Our target is to find out the regret, then find out the maximum of different alternatives, and then we have to go for the minimum of the maximums. So ये जो नेम है क्राइटेरिया का, उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। ठीक है? ओके सर। Okay, our next criteria. Next criteria will be Harwich criteria. Number 4. HURWICZ. और दूसरा नाम है क्राइटेरिया ऑफ रियलिज्म। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसको हम एक दूसरा नाम से भी इसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वेटेड एवरेज क्राइटेरिया। ठीक है, वेटेड एवरेज। तो इसमें हम क्या निकालते हैं, इसमें हम निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म। क्या चाहिए हम लोग को? कोएफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म। इसमें हम लोग पूरी तरफ से मतलब ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं है, पूरी तरफ से पेसिमिस्टिक भी नहीं है। हम ये सोच के चले कि हम 80% ऑप्टिमिस्टिक है और 20% पेसिमिस्टिक। ठीक है, तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म है, ये अल्फा, इसको हम पकड़ेंगे 0.8 मतलब 80%। ठीक है, तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म ये डिसाइड करेगा, जो डिसीजन मेकर है वो डिसाइड करेगा कि उनका कोएफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म क्या है। तो कोई 60% ऑप्टिमिस्टिक होता है, कोई 70% ऑप्टिमिस्टिक होता है। अगर कोई डेटा इसमें दिया नहीं गया प्रॉब्लम में, तो तुमको क्या चूज करना पड़ेगा? तुमको चूज करना पड़ेगा 0.8 बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 0.8 हो जाएगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। इस बार हमको वो तो ड्राइंग करना ही पड़ेगा, मतलब वो टेबल फिर से बनाना ही पड़ेगा, तो बना लेते हैं। ऑल्टरनेटिव्स, और ये होता है स्टेट्स ऑफ नेचर जो कि इवेंट्स है। तो उसमें हाई, मॉडरेट, लो, नील। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, एक्सपैंड, कंस्ट्रक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें से हमको टेबल बनाना पड़ेगा जो कि है 50,000
70,000, 30,000, 25,000, 30,000, 15,000, और ये था -25,000, -40,000, -1,000, -45,000, -80,000, -10,000। ठीक है, तो अभी इस क्राइटेरिया में कुछ डिफॉल्ट नहीं बोला गया है कोएफिशिएंट ऑफ ऑप्टिज्म के बारे में, तो अल्फा हम लोग 0.8 मान के चलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर ऑप्टिमिस्टिक होंगे तो हमको निकालना पड़ता था मैक्सिमम ऑफ रो, इसमें से मैक्सिमम निकालना पड़ता था ऑप्टिमिस्टिक क्राइटेरिया में, और पेसिमिस्टिक में क्या निकालना पड़ता था, मिनिमम। ठीक है, तो हमको ये दोनों निकाल लेना पड़ेगा, मैक्स ऑफ रो एंड मीन ऑफ रो। तो यहाँ पे मैक्स हो जाएगा तुम्हारा 50,000, यहाँ पे 70,000, यहाँ पे 30,000 मैक्सिमम ऑफ द रोज, और मिनिमम ऑफ द रोज में क्या होगा, -45,000, -80,000, यहाँ पर -10,000। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम हमने लिख लिए फॉर ईच ऑप्शन। एक्सपेंड ऑप्शन के लिए क्या मैक्सिमम लिख लिए, कांस्टेंट के लिए क्या मैक्सिमम लिख लिए, सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या मैक्सिमम लिख लिए। सिमिलरली ये मिनिमम सारे के सारे रो में कौन सी मिनिमम है हमने लिख लिए, इसमें कौन सी मिनिमम लिख लिए, इसमें कौन सी मिनिमम लिख लिए, तो ये मैक्स एंड मिन हमने लिख लिए। ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है, अभी हमको निकालना है एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे पी। तो यहाँ पे हम लोग पी लिखेंगे। पी क्या है, पी है अल्फा इंटू मैक्स, जो मैक्स ऑफ रो निकला है, प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू मिनिमम। ठीक है, तो P मतलब देखो P इक्वल टू अल्फा, जो कि 0.8 हमने डिफॉल्ट पकड़ेंगे, अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो ये डिपेंड करेगा डिसीजन मेकर के ऊपर। तो हम लोग 0.8 मान के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। 0.8 है तो अल्फा इंटू मैक्सिमम, और ये 1 माइनस अल्फा इंटू मिनिमम। ठीक है, ये मैक्सिमम का हमने बना लिए, मिनिमम का भी हमने बना लिए। तो ये 1 माइनस अल्फा ये जो है ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ पेसिमिज्म, अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म, और 1 माइनस अल्फा होगा कोएफिशिएंट ऑफ पेसिमिज्म। ठीक है, तो ये अल्फा मतलब 0.8 इंटू मैक्सिमम। तो हम पहले के लिए क्या करेंगे, पी एक्सपेंड के लिए क्या करेंगे, 0.8 इंटू 50,000। ठीक है, प्लस 0.2, 1 माइनस 0.8, 0.2 इंटू -45,000। तो इसमें से क्या निकल पाता है, 31,000। ठीक है, तो हम ऐसे 31,000। ठीक है, तो हमने लिख लिया। ऐसे सिमिलरली हम ये कॉन्स्ट्रैक्ट के लिए निकालेंगे, सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी निकालेंगे। ठीक है, तुम लोग निकाल लेना, मैंने तो दिखा दिया कैसे निकालना है। तो मैं आंसर लिख देता हूँ, 40,000, 22,000, या फिर ये दोनों को भी निकाल लूँ, क्या कहते हो। कर पाओगे ना तुम लोग, समझ समझ में आ गया ना कैसे करना है। हाँ Yes, सर, sir. हाँ सर। ओके, ठीक है, तो इसमें से हम लोग को निकल के आया है ये हम लगाते हैं क्राइटेरिया ऑफ रियलिज्म। इसमें से हम लोग क्या चूज करेंगे, इसमें से हम चूज करेंगे जो हाईएस्ट है उसको हम चूज करेंगे, जिसमें हाईएस्ट है ये 40,000। ठीक है, तो अगर कोई डिसीजन मेकर डिसीजन लेता है इस क्राइटेरिया के हिसाब से, तो डिसीजन मेकर will select construct a new plant option by following Harwich
क्राइटेरिया। देखो, जब हम लोग पूरा ऑप्टिमिस्टिक थे तब भी हम लोग को कॉन्स्ट्रक्ट निकल के आया था। अभी हम 80% ऑप्टिमिस्टिक है तो भी हम लोग को देखो कॉन्स्ट्रक्ट ही निकल के आया है। ये हम लोग ऑप्टिमिस्टिक से थोड़े थोड़े करके अगर नीचे जाते रहेंगे तो अल्टीमेटली जब हम पूरा पेसिमिस्टिक हो जाएंगे तब देखो हमको क्या मिलेगा, सब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जो कि पेसिमिस्टिक का समान है। क्योंकि जहां पे अल्फा 0 हो जाती है वहां पे क्राइटेरिया बन जाता है पेसिमिस्टिक। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। 0.8টা কেন নিলাম, মানে 0.8ই কেন নিচ্ছ? আমি তো 0.9ও নিতে পারতাম। এই স্ট্যান্ডার্ডটা 0.8 একটা কিছু ভেবে তো করেছো, ওটা কেন বলতে পারবে? ये डिपेंड करता है जो डिसीजन मेकर उसके ऊपर। अगर कोई डिसीजन मेकर मतलब ऐसे कुछ डिसाइड नहीं कर सकता तो ये प्रथा है, मतलब ये मतलब चल के आया है। अगर कुछ नहीं है तो 80% लेके चलते हैं, ऐसे बात है। Convention. It depends on decision maker. If nothing is written, by default you choose 0.8. When you become actual decision maker in a plan, then you choose your value. But 80% is the most relevant. Basically we always go with the optimistic option, but there always a chance is kept where there is a chance of accident. So if you are not fully optimistic, if you hesitate, if you think there might be something which may disturb our production, then you go with 60 and 70. There is no problem, because you are the decision maker. Nobody will question you except the shareholders. ওকে স্যার, ওকে। Okay, so let's go on the next criteria. The time is up, I think, sir. It's 11:51. No, I have almost 5 minutes yet. The class is up to 12 na, so give me 5 minutes. So it is up to 11:50. 11:50, sir. We have another class. Okay, then we'll close. Okay, then we will meet you on the next class. So I suggest you to study the books here sir already sent you. Please study, and if there is any issue, please inform me. Okay, sir. Okay, so I am ending this meeting. Thank you, sir. Okay. Yeah.